بلدیاتی الیکشن کی گنتی کا عمل کہاں تک پہنچا؟ اب تک کن علاقوں میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور کن براؤز میں کس پارٹی نے میدان مارا؟ تازہ ترین اپڈیٹ لیتے ہیں بیورو چیف 92 نیوز کے غلام حسین اوان سے۔ جی غلام حسین اوان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، برطانیہ کے اندر جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے جو انتخابات تھے وہ ظاہر گزشتہ روز ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کاؤنٹی کا عمل جو ہے وہ گزشتہ رات سے آج بھی سارا دن جو ہے وہ جاری رہا، اور جو ہے وہ لیبر پارٹی جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ ہمیں جیتی نظر آئی۔ بہت ساری جو کونسل تھی پہلے والی جہاں پہ لیبر پارٹی جیتی تھی، ایک تو وہ انہوں نے اپنی بوروز ہولڈ کی، اس کے علاوہ لنڈن کی بھی جو ہے وہ 3 جو بوروز ہیں وہ کنزرویٹو پارٹی سے جو ہے انہوں نے دوبارہ حاصل کی، اور بعض بوروز ایسی ہیں کہ جو 1964 سے لے کر اب تک جو ہے وہ ٹوری پارٹی جیتی آئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ لیبر پارٹی کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ لندن کے جو نواحی علاقے ہیں، ریڈنگ ہے، اس کے علاوہ اور بھی علاقے، وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھا کہ لیبر پارٹی جو ہے وہ میدان مارتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی جو ہے وہ بہت بڑی وجہ اس کو بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ جو برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن ان کا جو پارٹی گیٹ اسکینڈل تھا، اس کے اندر جو ہے وہ کافی تنقید کا سامنا تھا۔ ان کو اپنے کنزرویٹو پارٹی کے اندر سے بھی بہت زیادہ سامنا تھا۔ اس کے علاوہ لیبر پارٹی جو تھی اپوزیشن پارٹی، انہوں نے بھی اس کے اوپر بھرپور جو ہے وہ مہم چلائی، اور جو ہے وہ بورس جانسن سے وہ استعفے کا مطالبہ کرتے رہے۔ اور جب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ووٹر جو ہے وہ ناراض نظر آئے ٹوری گورنمنٹ سے، اور ان کی ایک وجہ پارٹی گیٹ اسکینڈل بھی بتا رہے تھے۔ اور اب ہم نے دیکھا کہ اس انتخابات کے اندر جو لبرل ڈیموکریٹ ہے، جو کہ تیسری بڑی پارٹی ہے برطانیہ کی، وہ بھی ابھر کر جو ہے وہ سامنے آئی۔ انہوں نے بھی بہت ساری سیٹیں جو ہیں وہ گین کی ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں برطانیہ کے اندر، وہ بڑے اس حوالے سے بھی دلچسپ تھے کہ لوگوں نے جو ہے اس کے اندر ایک تو بھرپور حصہ لیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اپوزیشن پارٹی تھی وہ ہم نے دیکھا جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ڈومینیٹ نظر آئی۔ خصوصی طور پر جو اگر ہم لنڈن کی بات کریں تو لندن کے اندر جو ہنسلو جو کونسل ہے، وہاں پر جو ہے بہت کلیئر میجورٹی جو ہے وہ لیبر پارٹی نے لی، اور اس کونسل کے اندر بہت سارے پاکستانی نژاد جو ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے علاوہ ایلنگ کونسل ہے، اس کے علاوہ پھر ریڈ برج کونسل ہے، یہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ پاکستانی نژاد جو امیدوار ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں لوکل گورنمنٹ کے، اس کا آئندہ جو نیشنل الیکشن ہوں گے برطانیہ کے، اس کے اندر بھی کافی امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ اب جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ لیبر پارٹی کافی ڈومینیٹ نظر آ رہی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹوری پارٹی جو اس وقت وزیر اعظم بورس جانسن، ان کی جو کووڈ کے حوالے سے پالیسیز تھیں، ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے عدم اعتماد کیا ہے۔ جی، برطانیہ کے بعد اسکاٹ لینڈ میں بھی کنزرویٹو پارٹی کو بلدیاتی انتخابات میں شکست کا سامنا رہا۔ اسکاٹش نیشنل پارٹی کے رہنما آئن بلیک فورڈ کا کہنا ہے کہ اسکاٹش عوام نے کنزرویٹو پارٹی اور اس کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے بورس جانسن کو پیغام دیا ہے کہ لوگ ان کی پالیسی سے خوش نہیں ہیں، جس سے لوگوں کا طرز زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ٹی وی پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ I think the important story from Scotland is the fact that the Tories are being rejected, their vote is down, and I think what really is important today is that the voters have sent a message to Boris Johnson, and I think really there's 2 things that count. One is of course the cost of living crisis, more needs to be done, and the other issue is Partygate, and I think people in Scotland have made it very clear that they want no more of this from Boris Johnson and his Conservatives. So I think you're going to find today it's a very clear message, and I'm sure this is going to be a day where we can celebrate the fact that the Tories have got the message that we expected. Well, let's get the elections out of the way today, Joe, and then we can move on. What you'll see the government in Edinburgh doing over the course of the coming months is bringing out a number of papers, setting out the vision of how we can create that greener Scotland, how we can develop our energy resources, for example, how we can deliver a fairer Scotland, and one where we drive investment into the economy. And of course that means Scotland becoming an independent country and being in the European Union. So we will lay out that vision, we'll engage with the voters in Scotland, we'll ask those on the unionist side to debate those issues with us as well. Yes. But I think the very clear message, Joe, and my message to whether it's Boris Johnson or anyone else in number 10, Yes. that they have to respect democracy, and they have to respect that in the elections to the Scottish Parliament last year, there was a pro-independence majority. Both ourselves and the Greens stood on a platform of delivering a Scottish referendum. We're now seeing the costs of Brexit, what the damage that's done to our industries, the impact of food inflation that we've had from Brexit. And Westminster has to realise that voters in Scotland have a right to have that discussion, that debate, in that vote on Scottish independence before the end of 2023.
बरतानिया की मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में पाकिस्तानी नयात काउंसलर्स भी बड़ी तादाद में मुंतखब हुए हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने लेबर पार्टी की जानिब से कामयाबी समेटी। लिबरल, डेमोक्रेटिक, टोरी पार्टी और आज़ाद हैसियत में भी पाकिस्तानी नयात उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बरतानिया में होने वाले मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। पाकिस्तानी नयात उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब। लंदन के इलाके हेंसलो, एलिंग, ब्रेंट, रेड ब्रिज, दिगर ब्रॉस में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी उम्मीदवार मुंतखब हुए। मजमूई तौर पर सैकड़ों पाकिस्तानी नयात उम्मीदवार लोकल इलेक्शन में मैदान मारने में कामयाब हुए हैं, जिन्हें न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि मकामी बरतानवी शहरियों की जानिब से भी हिमायत हासिल थी। कई इलाकों में पाकिस्तानी उम्मीदवारों ने गैर मामूली अक्सरियत हासिल करके कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल लंदन के नवाही काउंसिल थिरिक के वेस्ट थिरिक और साउथ स्टेफर्ड वार्ड से 157 वोटों की अक्सरियत से दोबारा काउंसलर मुंतखब हो गए। वो इंग्लैंड में थिरिक काउंसिल से मुंतखब होने वाले वाहिद पाकिस्तानी मुसलमान काउंसलर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। I declare that Kaiser Abbas is duly elected as a member for West Thurrock and South Stifford. बरतानिया में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इब्तदाई नताइज आना शुरू। कंजर्वेटिव पार्टी के काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल लंदन की नवाही काउंसिल थरक के वेस्ट थरक साउथ स्टेफन वार्ड से 157 वोटों की अक्सरियत से दोबारा काउंसलर मुंतखब हो गए। ये हल्का लेबर पार्टी का मजबूत हल्का तस्वर किया जाता है। वो इंग्लैंड में 5 मई को होने वाले लोकल इंतखाबात में थरक काउंसिल से मुंतखब होने वाले वाहिद पाकिस्तानी और मुसलमान काउंसलर हैं। इस मौके पर काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल का कहना था कि लोगों की अक्सरियत ने उन्हें जो प्यार और मोहब्बत दिया है वो इसको कभी नहीं भुला सकते। वो अपने हल्के के लोगों, कम्युनिटी रहनुमाओं और अपनी कैंपेन टीम के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिनकी मोहब्बत और अनथक मेहनत से उनकी कामयाबी मुमकिन हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा वेस्ट थरक, साउथ स्टिफर्ड, पर्फलीट ऑन थेम्स जो कि थरक काउंसिल के अंदर है, वहां से दोबारा काउंसलर मुंतखब हो गया हूँ। मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ, सारी कम्युनिटीज का मशकूर हूँ, अपनी कैंपेन टीम का मशकूर हूँ, जिनकी अनथक कोशिश से और उन लोगों की मोहब्बत की वजह से दोबारा ये जीत जो है ये वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। और ये याद रखिए क्योंकि मैंने पार्टी भी चेंज की थी, नेशनली भी यहाँ पे इस तरह का स्टाफ है जो नेगेटिव चाह रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के के लोगों ने जिस तरीके से मुझे प्यार से नवाजा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है इसने 18 साल बाद ये सीट जो है वो जीती है। कैसर अब्बास गोंदल का कहना था कि वो अपने हल्के के लोगों और दीगर कम्युनिटीज की खिदमत जारी रखेंगे और अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम भी करते रहेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी ने इस हल्के से काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल की वजह से 18 साल बाद कामयाबी हासिल की है। काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल ने चंद माह पहले ही अपनी पुरानी पार्टी पर अकरबा परवरी, नस्ली तासुब और इस्लामोफोबिया के इल्जामात लगाते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और कम्युनिटी ने अपनी भरपूर हमायत और वोटों से उन्हें कामयाबी दिला दी। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह रॉचडेल में भी लोकल इलेक्शन में वोटिंग का अमल जो कल मुकम्मल हुआ था, आज गिनती के बाद नताइज का ऐलान कर दिया गया है। किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा और फतह का ताज किसके सर पर सजा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद से जो इस वक्त गिनती हॉल में मौजूद हैं। जी राजा वाजिद, बताइएगा कि कौन सी पार्टी फतह हासिल कर चुकी है? जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रॉचडेल में, जहाँ पर लोकल इलेक्शंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, गिनती खत्म हो गई है और विनर्स का भी ऐलान हो चुका है। और हस्बे रवायत लेबर पार्टी ने जो है वो भारी अक्सरियत रॉचडेल में हासिल की है। टोटल 60 सीटों पर इलेक्शंस हुए हैं, जिसमें से 42 सीटों पर जो है वो लेबर पार्टी के कैंडिडेट्स जो है वो मुंतखब हुए हैं। इन 42 में से 14 जो है वो पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार थे। और अब मैं आपको लिए चलता हूँ जो उम्मीदवार आज के इस इलेक्शन में विन हुए हैं, जिन्होंने सीटें जीती हैं, उनके क्या तासुरात हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टोनी लॉयड से। Yes, Tony. This has been a great day for Labour. The public have spoken and they want a strong Labour council. They've got that. We've also got some brilliant new councillors who'll take the Labour message everywhere and we'll fight for this town. Thank you very much. Right, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले आप जितने हमारे मेंबर हैं उनको ग्रेचुलेशन देता हूँ। लेबर पार्टी की एक अच्छी कामयाबी हुई है रॉचडेल में। और उसके बाद मैं किंग्सवे में चौथी बार इलेक्शन जीता हूँ और मैं किंग्सवे रेजिडेंट का और मेंबरों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। राजा इफ्तिखार साहब। थैंक यू वेरी मच जी।
میں دلی طور پر مشکور ہوں، اپنے جتنے بھی کنسٹیچوئنٹ ہیں انہوں نے بھاری سی اکثریت سے پھر میرے کندھوں پہ ذمہ داری ڈال دی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ان کے توقعات پہ جو ہے نا وہ ہمیشہ کی طرح میں پورا اترتا رہوں۔ علی احمد، السلام علیکم۔ پہلا نمبر یہ تو ہمارا سینٹرل وارڈ کا جتنا بھی بھائی لوگ ہیں، بہن لوگ ہیں، جن لوگوں نے آ کر ہم لوگوں کو ووٹ دیا اور پھر سے یہ سروس کرنے کا موقع دیا، میں ان سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہمارا ٹیم ہے جن لوگوں نے اتنا محنت کر کے ہم لوگوں کو جتایا، ان لوگوں کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ہاں، میئر کونسلر عاصم رشید۔ جی میں شکر گزار ہوں اپنے روچڈیل کی اور ہیوڈ اینڈ مڈلٹن کے ریزیڈنٹ کی، اسپیشلی کیسلٹن کی، جہاں سے انہوں نے مجھے کامیاب کیا، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لیبر پارٹی ہی ایک پارٹی ہے جو ورکنگ کلاس کے لیے سٹینڈ لیتی ہیں، اور آج ہم شکر گزار ہیں کہ یہ پروو ہو گیا۔ تھینک یو سر۔ کونسلر شاہ وزیر۔ جی میں اپنی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ایک مرتبہ پھر ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کیا، ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کی توقعات پر پورا اتریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ Thank you very much, sir. First time, Councillor Shahid. Assalamu alaikum. My name is Shahid Mohammed. I'm really happy to be elected today as a Labour councillor. It's been an amazing day. It's been fantastic for Labour. Inshallah, we will work hard for our constituents, people who voted for us and supported us. Thank you so much for everyone who came out. Thank you very much. What's your name? Trisha. Trisha, Councillor Trisha. And I'm very pleased and proud to have been elected to join this strong team of Labour councillors in Rochdale. Thank you. Thank you very much. Councillor Sabina Zahid. میں سینٹرل وارڈ کے تمام ریزیڈنٹس کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور اپنے دو ساتھی کاؤنسلرز، کاؤنسلر افتخار اور کاؤنسلر علی احمد کا، جنہوں نے مجھے سپورٹ کی، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم لیبر گروپ ایک دفعہ پھر اس برو کو خدمت کی کوشش کریں گے۔ Thank you very much. Councillor Amina. I would like to say thank you to my agent, Elsie, and then right to my team members, and then to the voters, which I am very grateful for, who have supported me. This is my 4th term, and I am grateful to them for voting me again and again and again. Thank you very much. جی ہاں، اور سب سے کم عمر کاؤنسلر، بیبی کاؤنسلر آپ کہہ سکتے ہیں، عائزہ عاصم رشید۔ Yeah, I just want to say a huge thank you to everyone who supported Labour, who came out and voted for Labour as well, and a huge thanks to all the residents of Milkstone and Deeplesh for electing me, and a huge thank you to my 2 ward colleagues as well, because we're all in this together. Thank you very much. Councillor Iram Faisal. Hello everyone, thank you so much to the Spotland and Fairlinge residents who came out and voted for all 3 of us. I'd like to say a really big massive thank you to my agent Razak Musa, to my husband Faisal Rana, and to my colleague and also councillor now Amber Nisa. Thank you to everyone, my family and my friends. Thank you everyone. I am so happy today. Thank you so much. Thank you so much. جی آپ کا نام سے؟ Amber Nisa. I just want to say a huge thank you to all the residents in Spotland Village for supporting the Labour team. I want to say thank you to my lovely agent, Mr Musa, and Councillor Imran Faisal and Councillor Rana Faisal, because they have been great. Thank you to everybody. Thank you very much. Councillor Arshad. I want to say thank you very much to all the residents in Milkstone and Deeplesh who came out and supported us, and also I want to say thank you very much for supporting Ghulam Shahzad, who's our agent. He's been very helpful, and I also want to congratulate all the councillors who got elected, and also we won as a Labour Party as well. And I want to say massive thank you to all the supporters, all the people who came out to support us, and without them it wouldn't possible. Thank you very much. جی ہاں، بالکل نئے الیکٹڈ کاؤنسلرز کا کہنا ہے کہ جس طرح ہمارے ووٹرز نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور ہمیں آج کامیاب کروایا ہے، ہم انشاءاللہ ان کے اس اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ جی مسلم لیگ نون UAE کے سینئر رہنما اور معروف بزنس مین مرزا ظفر محمود کی جانب سے مسلم لیگ نون UAE سینئر نائب صدر عبدالمجید مغل، نون لیگ کے نائب صدر جمیل بنگالیہ اور پیپلز پارٹی گلف کے صدر میاں منیر کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ عید ملن پارٹی میں سیاسی رہنماؤں کی فیملیز نے بھی شرکت کی۔ سید منتصر خوشنود کی یہ رپورٹ۔
माह मुकद्दस के बाद यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटी और सियासी रहनुमाओं की जानिब से ईद मिलन पार्टीज का सिलसिला शुरू हो गया। इसी मुनासबत से गुज़िश्ता रोज नून लीग यूएई के रहनुमा मिर्जा जफर महमूद की जानिब से अपनी राइशगाह पर पीडीएम में शामिल जमातों के रहनुमाओं और उनकी फैमिलीज के एजाज में ईद मिलन पार्टी की शानदार तकरीब सजाई गई। ईद मिलन पार्टी में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौका पर शुरका का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत ओवरसीज के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने में कामयाब हो जाएगी। नून लीग मुत्तहदा अरब अमारात के सीनियर नायब सदर अब्दुल मजीद मुगल, नून लीग यूएई के नायब सदर जमील बंगियाल, पीपल्स पार्टी गल्फ के सदर मियां मुनीर हांस और दीगर का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मिर्जा जफर महमूद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पीडीएम की तमाम जमातें नई हुकूमत का हिस्सा हैं, शहबाज शरीफ के काम पर यकीन रखते हैं। उन्होंने आते ही आटे और चीनी की कीमतें कम करके ये साबित किया कि ये हुकूमत अवाम का दर्द समझती है। माशाल्लाह जफर महमूद साहब ने ईद मिलन पार्टी रखी जिसमें मुख्तलिफ जो है लोगों ने शिरकत की। एक तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया और इंशाअल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अब बहुत जल्द खुशखबरियाँ आएंगी गवर्नमेंट चेंज होने से कि ओवरसीज़ के इशू है जो उनको बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह हल किया जाएगा और बेशुमार जो वादे पिछली गवर्नमेंट ने किए थे उन पे अब ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह पॉजिटिवली और लोगों को सहूलतें देने में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं महमूद साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने माशाअल्लाह रमज़ान के बाद ये ईद मिलन पार्टी वो लोग लेकिन घर में इन्होंने पहली दफ़ा की है, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा जिस तरह गवर्नमेंट के देखें चैलेंजेस हर जो गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट किस तरह भी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन वफादार वही है वो जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। देखिए किसी हालत में आज तक आपने मेरे ख्याल है शहबाज शरीफ के मुंह में नहीं सुना होगा कि मुझे मुल्क बुरी हालत में मिला है, कैसे मिला है। आते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जो काम करता है उसकी कोई चैलेंज कोई वो मैंने नहीं रखते हैं। इंशाल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर काम अपने मुल्क की मोहब्बत रखते हुए पूरे करेगी और कंप्लीट भी करेगी। बहुत शुक्रिया जी सबसे पहले 92 चैनल का और राना अरशद साहब का, और बिलखसूस आज जो दावत की है ईद मिलन पार्टी जफर महमूद साहब ने। एक तो ये खिता पठवार का हुसन है और फिर ये बड़े हमारे क्लोज फ्रेंड हैं और माशाल्लाह बड़ी दोस्तों के लिए बड़ी अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं। बड़ा मज़ा आया और सबको ईद मुबारक और थैंक्स जफर महमूद साहब का। इसके बाद पीडीएम जी माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून और पीडीएम ये जो जमातें बनी हैं अभी ये पूरी गवर्नमेंट का एक हिस्सा हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अनथक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो हमारी मैशत गिर चुकी थी न्याजी के दौर में वो दोबारा उसको स्टेबल करना है। मुगल साहब का, मियाँ साहब का, जमील बंगियाल साहब का, बाकी जितने भी मेहमान आए हैं मैं उनका अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पहले से बहुत बेहतर हालात हो रहे हैं। इंशाअल्लाह हम देख रहे हैं कि आगे भी हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी। ये गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि अपने जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ग्रास लेवल तक उनके पास पहुंचने की और जितने भी लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तकलीफ है उनको दूर करेगी इंशाअल्लाह। उनका मजीद कहना था कि पीडीएम की तमाम जमातें अवाम के मुफाद में इकट्ठी हुई जो आइंदा भी मिलकर काम करेंगी। ईद मिलन पार्टी में सियासी रहनुमाओं और उनकी फैमिलीज ने अलग अलग केक काटे। आखिर में मेहमानों की मजे मजे के पाकिस्तानी रवायती खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुजस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। पाकिस्तानी फिल्म पर्दे में रहने दो पाकिस्तान के बाद दुबई में भी शायकीन को भा गई। गुज़िश्ता रोज़ दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर दुबई मॉल के सिनेमा घर में फिल्मी सितारों का रेड कार्पेट इस्तकबाल और फिल्म का प्रीमियर शो हुआ जिसमें स्टार कास्ट अली रहमान, हानिया आमिर और डायरेक्टर वजाहत रऊफ ने शिरकत की। फिल्म को शायकीन ने खूब सराहा जबकि अजीम डार प्रोडक्शन के गाने सैयां की भी बड़े पर्दे पर पजीर आई। मजीद अहवाल मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर पर रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्म पर्दे में रहने दो अमारात में मुकीम शायकीन को पसंद आ गई। दुबई में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी सिंगर, मॉडल और अदाकार अजीम डार ने मुकामी इवेंट कंपनी के इश्तराक से पाकिस्तानी फिल्म के प्रीमियर का एहतमाम किया जिसमें फिल्म की स्टार कास्ट, डायरेक्टर और दीगर टीम ने शिरकत की और प्रीमियर शो को खूब इंजॉय किया। रोमांस और कॉमेडी फिल्म में समाजी और माशरती नाहमवारियों को शानदार अंदाज में उजागर किया गया। फिल्म
के हीरो अली रहमान, डायरेक्टर वजाहत रऊफ और सिंगर अजीम डार और नासिर डार का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि दुबई में फिल्म का बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला है और फिल्म में जिस मुआशरती बुराई की निशानदेही हल्के फुल्के अंदाज में की गई है उसका असल पैगाम लोगों तक पहुँच गया है और इसे खूब सराहा जा रहा है। जितने इंट्रिकेसी से हमसे डील करें, थोड़ा हमने ट्राई किया कि हम कॉमेडी के साथ और रोमांस के साथ इसको फिल्म के एंटरटेनमेंट भी इसके अंदर डाल के रखें, मगर बहुत ज़रूरी है इस तरह की बातें करना क्योंकि हमारे माशरे में इस तरह की बातें नहीं की जाती और इसी से मुसीबतें फिर फैलती हैं। 3 मूवीज़ कॉमेडीज थी और मेरा मकसद ये होता था कि एंटरटेन करें सर, पर इस दफ़ा अगर एंटरटेन करने के साथ साथ कोई मैसेज भी दे दें, और हमारे यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज है कि अगर औलाद नहीं हो रही होती है कपल की तो औरत पे डाल देते हैं कि भाई यही बांझ होगी। तो ये हमारा इरादा था कि म्यूज़िक, कॉमेडी और इसके अंदर हम एक हार्ड मैसेज को ज़रा सॉफ्ट वे में बयान कर सकें। बड़ा ब्लेस्ड हूँ मैं कि इनके साथ आगे ये सेटअप करने का, कुछ काम करने का मौका मिल रहा है, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा मूवी को जाएं और जाके देखें। प्रीमियर में मौजूद शायकीन का 92 न्यूज से बात करते हुए कहना था कि पर्दे में रहने दो फिल्म ने दर हकीकत पर्दा उठा दिया है। फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये फिल्म हिट होगी। जबकि शायकीन ने अजीम डार के प्रोडक्शन तले बनने वाले गाने साया की बड़े पर्दे पर लॉन्चिंग को भी खूब सराहा और गाने को पसंद किया। डबल खुशी हुई। पहले तो मेरा सॉन्ग काफी लोगों ने प्यार किया, 1-2 दिन में 1 मिलियन होने ही वाला है, तो बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्यार किया और जो करते हैं। और फिल्म देखी तो मुझे और भी मज़ा आया क्योंकि पाकिस्तानी कहीं भी कम नहीं है किसी भी काम में। पब्लिक को एक साइलेंट मैसेज, इट्स अ ब्लीडिंग टॉपिक बाय द वे नाउअडेज, और बहुत अच्छा है कि वहाज ने और शाजिया जी ने इसको पब्लिक में लेके, और हाउ ब्यूटीफुल इट्स बीन एक्ट, सो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मूवी देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा है, बहुत मज़ा आया। इसमें एक मैसेज है, पब्लिक मैसेज है, जो लोग मायूस हो जाते हैं तो उनके लिए ये मोटिवेटिंग मैसेज है कि नेवर गिव अप। फिल्म पर्दे में रहने दो में अदाकारा हानिया आमिर और अदाकार अली रहमान मरकजी किरदारों में सामने आए हैं। जावेद शेख, मुनज़्ज़ा आरिफ, मोहम्मद हसन रजा, नूरुल हसन, सादिया फैसल, सोनिया नजीर, सैफ हसन और यासिर हुसैन बतौर मेहमान अदाकार जलवागर हुए हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश के लिए फीसों में इजाफा। मई में अब मुस्तकिल रिहाइश के तौर पर मुंतकिल होना ज़्यादा महंगा साबित होगा। 5 अप्रैल को इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा IRCC ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया कि कनाडा इक्तसादी, परमिट होल्डर, फैमिली और तमाम मुस्तकिल रिहाइश PR दरखास्तों की फ़ीसों में इजाफा कर रहा है। तो इसकी ये पेशगोई सच साबित हुई। ये फीस में इजाफा मई के माह से नाफिजुल अमल होगी। इस तमाम अमल से PR के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार को अब इजाफी फीस के साथ और भी अखराजात का सामना करना पड़ेगा। कनाडा का मुस्तकिल रिहायशी बनने के लिए किसी गैर मुल्की शहरियों को दस्तयाब प्रोग्रामों में से एक के तहत दरखास्त देने की ज़रूरत है। प्रोग्रामों में एक्सप्रेस एंट्री, सूबाई नामजद प्रोग्राम और क्यूबिक हुनरमंद वर्कर्स, एटलांटिक इमिग्रेशन क्लास, इकनॉमिक पायलट्स, लाइव एंड केयरिंग प्रोग्राम और निगाहदाश्त करने वाले पायलट्स, बिजनेसेस समेत दीगर शामिल हैं। जबकि मुस्तकिल रिहायशी कार्ड्स, मुस्तकिल रिहायशी सफरी दस्तावेज़ात और सर्टिफिकेशन या मुतबादिल इमिग्रेशन दस्तावेज़ात के लिए फ़ीस यकसा रहेगी। तफरी और रंगारंग शोज से भरपूर जद्दा सीज़न 2 ने शुरू होते ही सयाहों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। 3 रोज़ में 2 लाख शहरियों ने जद्दा सीज़न के दिलचस्प और तफरीही प्रोग्राम्स का लुत्फ़ उठाया। जद्दा सीज़न का आगाज़ ईद उल फितर से एक दिन पहले हुआ। रंगारंग इवेंट से सजे शो में रिकॉर्ड शहरियों ने शिरकत की। सऊदी मीडिया के मुताबिक सिर्फ 3 रोज़ में 2 लाख से ज़ायद विजिटर्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, जिन्होंने इसके दिलचस्प, मालूमात और तफरी से भरपूर प्रोग्राम से लुत्फ़ उठाया। शहरियों की बड़ी तादाद कैनेडियन सर्कस और आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए पहुंची थी। 60 रोज़ तक जारी रहने वाले जद्दा सीज़न में हर उम्र के अफराद के लिए तारीखी, सियाहती, सकाफती और मुनफरिद तफरीहाती प्रोग्राम होंगे। जद्दा सीज़न शहर के 9 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें बच्चों के लिए 60 प्लेलैंड तर्ज की सरगर्मियाँ रखी गई हैं, जबकि 7 अरबी और 2 बैनुल-अक़वामी स्टेज शो पेश किए जाएंगे। शहरी जौक तर जौक तकरीबात में शरीक हो रहे हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।